So guys, welcome back to SQL series and today we are learning about transactions. Guys, trust me, this is the most important topic in SQL series. Okay, so transactions are most important. Why? We'll see that in complete video. Okay, so the first of all, what is transaction? Okay, but before that, you need to know one scenario. Okay, suppose that you are booking online tickets. Okay, you are booking train tickets, you are booking movie tickets, you are also transferring your money, or even you are doing online shopping on any website. Transactions are working behind that. Okay. So in this complete lesson, you will see how we are working with how transaction working in real world scenario, and also how you can work with transaction in SQL and other databases, and what is distributed transaction, what is transaction, and we will see many of SQL examples where we are using transaction and success and failure both scenarios. Okay, so let's start with transactions. So guys, let's say you transferring some amount to your friend. Okay, you have 5,000 of your friend Ramesh and you want to transfer that amount back to him. Okay, so let's say this is you. Okay, and you want to transfer some amount to your friend. So you want to transfer 500 to your friend. Okay, so suppose that you initiate the transaction and your amount is directed, but there is some system crash or something happen, the amount is not credited to your friend account. So what happened? Like this is like just simple way, like आपका अकाउंट तो कट गया, ठीक है, बट आपके अकाउंट से तो पैसे कट गए एंड शाम के अकाउंट में नहीं पहुंची, तो पैसे कम है। यहीं पे आपका ट्रांजेक्शन का रोल आता है कि भाई वो इस चीज को मेंटेन करे कि अगर आपके पास से 500 डिक्रीज हुए हैं तो शाम के अकाउंट में वो इंक्रीज होने चाहिए, एनी हाउ इंक्रीज होने चाहिए। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है कि उसके अकाउंट में इंक्रीज नहीं हुए हैं तो वो आपके अकाउंट से भी डिक्रीज नहीं होंगे, वो अमाउंट बैक आपके पास वापस आ जाएगा। सो दिस इज ट्रांजेक्शन। इन सिंपल वर्ड वी कैन से ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीट। ओके, एंड ट्रांजेक्शन ऑल्सो फॉलोइंग सम प्रॉपर्टीज acid properties we can say ACID, not acid one, ACID. Okay, so let's see one by one how transaction following these properties and how securing our database to failures of like this, like amount is debited and not credited, ticket is booking but not booked successfully, you will not get any confirmation. So how database is maintaining this? Okay, so let's see one with one example. Okay, here you can see I have added update accounts set balance minus 500 where ID 1. Okay, this is sender. Okay, and there is a second statement where we are updating account set balance was that successfully submitted. Okay, so update account set balance plus 500 to receiver. Okay, तो ये दोनों टास्क आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी टास्क, अगर मान के चलो यहाँ से सेंटर से डिडक्ट तो हुए बट अगर यहाँ पे क्रेडिट नहीं हो तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको फिर से वो 500 इसमें वापस डालने पड़ेंगे। ठीक है, सो गाइस लेट्स सी व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेसन। फर्स्ट, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, एसेट प्रॉपर्टीज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स, ओके, TCL also you can say, start, commit, rollback, save point. These are the keyword where we are creating transaction and using them. The most important part is auto commit, implicit comment and explicit comment. You should know what is auto commit, कैसे हमारा ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक कमिट हो रहा है, ठीक है, या what is auto commit, ठीक है, या फिर इम्प्लिसिट कमेंट कैसे होता है, एक्सप्लिसिट कमेंट कैसे होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन विद स्टोर प्रोसीजर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, and the next one, interview questions. So interview question you need to know because always there is some practical example also in interview question they mentioned. Okay, so let's see what is transaction. Okay, a transaction is a sequence of one or more SQL operation such as insert, update, delete. Because select does not affect anything on your database. Suppose आप हजारों मतलब database slow speed कर सकता है अगर आप millions of records select कर रहे हो, but other than this you can't say that like there is any effect of select on your database, right? So insert, update, delete ही ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे आप डेटा को रिमूव कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, ठीक है, या इंसर्ट कर रहे हो, तो वहां पर हमारा ट्रांजेक्शन काम करता है। दैट आर एग्जीक्यूटेड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। मतलब अगर आप मल्टीपल इंसर्ट या मल्टीपल अपडेट कर रहे हो या इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हो तो एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क में काउंट होता है इन अ ट्रांजेक्शन। इफ ऑल ऑपरेशन इन द ट्रांजेक्शन सक्सीड, सारे ऑपरेशन सक्सेस होते हैं, द चेंजेस आर कमिटेड टू द डेटाबेस। देखो कमिटेड या कमिट का मतलब ये है
कि भाई जो भी काम है ना उसको कमिटमेंट दे दो कि अब हो गया डन। जैसे हम किसी को कमिटमेंट देते हैं ना कि नहीं नहीं फॉर श्योर हो जाएगा, दिस इज माई कमिटमेंट, you have my words, right? So this is like that. If any operation fail, the entire transaction can be rolled back to ensure data integrity. मतलब कोई भी ऑपरेशन अगर फेल होता है, ठीक है, जैसे मैंने अगर आपको बताया कि 500 रुपये मेरे कट तो गए बट सामने वाले के पास पहुंचे नहीं, तो कोई भी अगर ऑपरेशन फेल हुआ, नहीं पहुंचे उसके पास, तो हमारे पास से भी नहीं कटेंगे। दैट इज डेटा इंटीग्रिटी। मतलब अगर मेरे पास है कुछ अमाउंट या फिर कोई भी वैल्यू या कोई भी वैल्यू चेंज हुई है, सपोज इट्स नॉट अबाउट अमाउंट ऑलवेज, इट्स जस्ट कि मैं जैसे मान चलो मैं बुक माई शो, ठीक है, और मेरे पास से 4 टिकट बुक हो गई, सामने वाले पास टिकट नहीं पहुंची, ठीक है, तो मेरे पास तो वापस वो सीट आनी चाहिए ना। सेम अगर जैसे मैं बंदा हूँ जिसमें मैंने 4 टिकट बुक करी है, 4 टिकट का मैंने पे किया है, पे करने के बाद भी अगर मेरे पास वो टिकट बुकिंग नहीं होती है, तो बुक माई शो हैव टू रिटर्न माई मनी बैक, राइट? सो दिस इज लाइक ट्रांजेक्शन। इसके यूज केस क्या है भाई? देखो, बैंक ट्रांसफर, अभी मैं इतनी देर से जो बता रहा हूँ, ऑर्डर प्रोसेसिंग, अगर आप अमेजन वगैरह पे ऑर्डर करते हो, यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर आपको यूजर रजिस्टर कर रहे हो एंड ऑल दैट। Okay, so let's see some funny fact about the transaction. A transaction is a group project. If one person fails, everyone fails. ठीक है, बट इन डेटाबेस एटलीस्ट वी कैन रोल बैक एंड ट्राई अगेन। मतलब अगर आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट करते हो एज अ बीटेक स्टूडेंट और वो फेल हो जाता है, ठीक है, तो चारों के चारों बंदे फेल हो जाएंगे जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर है। बट ट्रांजेक्शन हम डेटाबेस के अंदर करते हैं तो हमारे पास रोल बैक करने का एक सोल्यूशन है। ओके, okay, so let's see the key properties first. Okay, asset properties which I am telling you from since start of the video, like asset properties क्या होती हैं, ठीक है? तो कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी डेटाबेस के अंदर, चाहे वो एसक्यूएल नो एसक्यूएल डेटाबेस हो, ठीक है, तो वहां पे एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी इफ यू आर डूइंग एनी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो एसिड प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं भाई? एटोमिसिटी, एटॉमिक यू कैन आल्सो से, तो एटोमिसिटी इज सेइंग ऑल ऑपरेशन सक्सेस और नन टू, या तो सारे ऑपरेशन सक्सेस होंगे या फिर कोई भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे 5 ऑपरेशन मान लो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो मजा आएगा। देखो जैसे ये एक, ठीक है, मान के चलो एक अकाउंट है भाई जिसमें 10112022303 अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट होल्डर कौन कौन से हैं? राहुल, अमित और नील। इसी एग्जांपल में आई विल टेल यू कि भाई एटोमिसिटी एंड बाकी सारी चीजें ऐसे काम करती है। देखो, सबसे पहले स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। देखो, चेक इफ अकाउंट ए हैज इनफ बैलेंस। एक पूरा ट्रांजेक्शन का फ्लो इफ आई टेल यू कि भाई बैलेंस है कि नहीं उस अकाउंट में जो ट्रांसफर कर रहा है। जैसे 101 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हो पैसे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले बैलेंस चेक करोगे, इनफ बैलेंस है कि नहीं। जैसे मैं अगर 5 लाख रुपए ट्रांसफर करना चाहूँ तो मेरे पास 5 लाख रुपए होने चाहिए, राइट? तो सेम, सबसे पहले हमने फ्रॉम बैलेंस लिया, देन हमने स्टेप 2 किया। देखो, एक आप केस चेक लगा सकते हो कि रोल बैक कर दो उसको या फिर ट्रांजेक्शन को एंड कर दो अगर उसका अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो। बट हम सक्सेस केस लेके चल रहे हैं, तो मान के चलो मैं 5000 ट्रांसफर कर रहा हूँ फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। तो मैंने क्या करा? अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस 5000 माइनस 5000 एंड 5000 मैंने अकाउंट बी में ऐड कर दिया, ठीक है। कि जैसे भाई, जैसे अगर वहां से पैसे चले जाएं, जैसे यहाँ से मैंने पैसे निकाल लिए तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाए, ठीक है। अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो फिर मैं उस ट्रांजेक्शन को लॉक कर रहा हूँ। जैसे हमने देखा हो पेटीएम में हिस्ट्री वगैरह होती है, लाइक दैट, ठीक है। सो एंड लास्ट में मैं उसको कर रहा हूँ कमिट द ट्रांजेक्शन। ये सारे स्टेप अगर सक्सेस होते हैं देन हमारा एटोमिसिटी काम करता है कि भाई सारे ऑपरेशन सक्सेस होते हैं, वरना ये सबको रिवर्ट कर देगा, एक भी ऑपरेशन नहीं होगा। दैट्स अ सेफ पॉइंट। देयर इज अ थिंग कि उसमें से आप आधे कमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा इसके बाद। देन इज कंसिस्टेंसी। द डेटाबेस मस्ट रिमेन इन अ वैलिड स्टेट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। देखो, स्टेट होती है डेटाबेस की, देखो मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी इसके बाद पूरा डिटेल में कि भाई कौन कौन सी स्टेट होती है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। ये यू कैन सी कि दिस इज स्टेट्स, ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं इसको। बट हाँ, व्हाट इज वैलिड स्टेट फॉर नाउ? वैलिड स्टेट मीन्स अगर मेरे पास जो बैलेंस पहले से है, 5000 मेरा बैलेंस है, मैंने उसमें से 500 किसी को ट्रांसफर किया, उसके बाद ट्रांसफर नहीं हुआ, देन इट शुड लाइक कि मेरे पास वो डेटा 500 वापस आने चाहिए और मेरा डेटा एज इट इज सेम रहना चाहिए। अगर जैसे अमाउंट के एग्जांपल से आप थक गए हो तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि मैंने टिकट बुकिंग करी, ठीक है, तो मैंने A1 और A2 दो सीट बुक करी, लेकिन लास्ट में मेरा पेमेंट फेल्ड हो गया, तो बाद में अगर मैं दोबारा उसको ट्राई करूंगा तो वो बुकिंग तो हट जानी चाहिए ना वहां से, राइट। A1 और A2 सीट, 2 कॉर्नर सीट, वो खाली हो जानी चाहिए वापस, राइट। आइसोलेशन, दिस इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। आइसोलेशन, ट्रांजेक्शन अगर इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस। देखो, अगर मैं कोई टिकट बुक कर रहा हूँ, A1 A2 मैंने टिकट बुक करी, बुक माई शो का एग्जांपल लेके चलो, मैंने A1 A2 टिकट बुक करी फॉर मी एंड माई वाइफ और गर्लफ्रेंड, ठीक है। बट क्या हुआ भाई कि जैसे ही मैं उसे बुक कर रहा हूँ ना,
इतनी देर में कोई दूसरा बंदा आया, उसे बुक करके चला गया। मैं पेमेंट कर ही रहा था, इतनी देर में बुकिंग हो गई। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? ऑफ कोर्स नहीं है एक्सेप्टेबल, क्योंकि मैंने वो सीट सेलेक्ट करी, इतनी देर में बुक कैसे हो सकती है? क्योंकि भाई मैं एटीएम कार्ड ढूँढ रहा हूँ अपना, या यूपीआई मेरा फेल हो रहा है, या मैं दूसरा अकाउंट से ट्राई कर रहा हूँ, बट इतनी देर में वो फेल हो गया, ठीक है? तो इसके लिए बुक माई शो क्या करता है, आपको एक विंडो देता है, चाहे वो 30 सेकंड की हो, 1 मिनट की हो, तो वो आपकी उन A1 A2 सीट को ब्लॉक कर देता है। कभी मोबाइल में ट्राई करना, एक मोबाइल से बुक करना, दूसरे मोबाइल से बुक करना, तो दूसरे में शो नहीं करेगी जब तक आप अपना ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, राइट? तो ये होता है आइसोलेशन, कि मेरे को कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए जो मैं ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए, मेरे पास ₹5000 है, तो मैं 2500 किसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, 3000 किसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो एक साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे तो डेटा इंटीग्रेट हो जाएगी। है मेरे पास 5000, 5000 है मेरे पास, और 3000 2500 तो मैं पैरेलली करता हूँ, तो इससे क्या होगा कि भाई अकाउंट में से 5500 कट जाएँगे। तो बैंक इस चीज़ को मेंटेन करता है कि भाई एक बार में एक ट्रांज़ैक्शन हो, वरना दूसरा ना हो, ठीक है? तो दिस इज़ आइसोलेशन। ड्यूरेबिलिटी, वंस कमिटेड चेंजेस आर परमानेंट इवन इफ द सिस्टम क्रैश। भाई अगर एक बार कमिट होगा ना चेंजेस, परमानेंट सेव हुए, अब उसके बाद आग लग जाए सिस्टम के अंदर, लेकिन हमारे डेटाबेस में डेटा सेव रहेगा कि भाई लास्ट ये काम हुआ था। बट कमिट होने के बाद अगर वो पार्शियली कमिट है, आई विल टेल यू द स्टेट, बट अगर वो कमिट नहीं हुआ है तो रोल बैक हो जाएगा। आधा अधूरा काम हुआ है तो वो रोल बैक हो जाएगा। तो दिस इज लाइक एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी वर्क टुगेदर इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, ठीक है? तो ये ट्रांजेक्शन सारे रूल फॉलो करता है, तभी एक ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है? तो एक इसका डिटेल पढ़ते हैं। एसिड इज एन एक्रोनियम यूज्ड फॉर प्रॉपर्टीज ट्रांजेक्शन इन डीबीएमएस। इट इज यूज्ड टू डिनोट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑल दैट सिंपल। ओके, तो एक बार इसको एग्जांपल दे देता भाई क्या मैं कर रहा हूँ इसके अंदर। वैसे तो देखो बैलेंस ही मैं रिमूव करके ऐड कर रहा हूँ और ट्रांजेक्शन लॉक कर रहा हूँ। दिस इज ऑल दैट, ठीक है जी। जो चीज़ है ड्यूरेबिलिटी, ये सब कुछ इसी के अंदर एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है? सो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड। देखो भाई अभी प्रैक्टिकल देखते हैं, केवल ये तीनों समझ लो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास सीधा ट्रांजेक्शनल स्टेट है, ठीक है? तो एक बार ये और समझ लो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं, देन उसके बाद हम स्टेट पे जाएंगे, ठीक है? या इसके बाद स्टेट पे जाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे, ठीक है? तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड, हाउ टू स्टार्ट अ ट्रांजेक्शन इन माइस्क्ल, ठीक है? देखो स्टार्ट ट्रांजेक्शन, भाई ट्रांजेक्शन अगर मैं स्टार्ट करना है इसी में देख लो, अगर हमें स्टार्ट ट्रांजेक्शन करना है तो हमें स्टार्ट ट्रांजेक्शन का कमांड यूज करना होगा। नेक्स्ट इज कमिट, सेव ऑल चेंजेस मेड इन ट्रांजेक्शन, कि भाई सारे चेंजेस सेव होने के बाद हम कमिट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं इस ट्रांजेक्शन के अंदर कर रहा हूँ, राइट दैट, ठीक है? और ये आपके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो वंस इन अ वाइल एक बार में सबको कमिट कर देगा। कमिट का मतलब जो भी ऑपरेशन आपने करे वो तब तक टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब उसके सिस्टम में है कि भाई ये काम कन्हैया भाई ने बोले करने के लिए, इसको रिमूव कर दो, इसको इंसर्ट कर दो, इसको अपडेट कर दो। तो उसको टेम्परेरी वे में रखो, एक पेज में लिख के रखो नोट्स में, ठीक है? जैसे ही वो हो जाए सारे चेंजेस एक बार में डेटाबेस में सबमिट कर दो कि हाँ भाई ये तीनों चेंजेस आपको परमानेंटली करने हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज रोल बैक, अनलूज undoes all changes since the transaction began। जो भी स्टार्ट ट्रांजेक्शन कीवर्ड के बाद आपका काम स्टार्ट हुआ, जैसे अगर मैं इसके पहले कोई कमांड लिखता हूँ ना, जैसे अगर मैं यहाँ कोई कमांड लिखता हूँ तो वो चल जाएगी, वो कमिट हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी काम हो रहा है, जैसे सिलेक्ट इज नॉट फॉर समथिंग, ठीक है? लेकिन उसके अलावा जो भी काम हो रहा है, जैसे ये तीन ऑपरेशन जो हो रहे हैं, ये तीनों कमिट हो जाएंगे इफ आई यूज रोल बैक। सेव पॉइंट, सेव पॉइंट हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ। सेट्स अ पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन टू रोल बैक टू लेटर। मतलब देखो एक सेव पॉइंट होता है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन में भी ऐसा हो कि भाई जैसे डू वाइल होता है, एक बार तो चलेगा, ठीक है? तो सेम ऐसी सेम इसमें समझ लो कि भाई मुझे यहाँ पे एक काम करना था, स्टार्ट ट्रांजेक्शन का एक लॉग ऐड करना था कि ट्रांजेक्शन एटलीस्ट स्टार्ट हुआ था। मुझे पता होना चाहिए ना कितने ट्रांजेक्शन फेल हुए। अगर मान के चलो मैं ये लॉग है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, चाहे वो फेल्ड हो या सक्सेस हो, तो यहाँ पे मुझे ये भी पता नहीं चलेगा कि कभी ट्रांजेक्शन मेरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो हम वहाँ पे सेव पॉइंट रख सकते हैं कि इतना चले, यहाँ तक चले, ठीक है? और यहाँ पे मैंने एक अपनी कमांड लिख रखी है सेव इंसर्ट ट्रांजेक्शन की, और ये चले और इसमें मुझे पता चले कि किसी का ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था एटलीस्ट, ठीक है? तो दिस वी कैन मेंटेन विद द सेव पॉइंट। मतलब आधे तक उसको कमिट कर, आधे तक कमिट कर दो, बाकी आधा रह दो, ठीक है? भाई लास्ट डेफिनेशन है, उसके बाद प्रैक्टिकल पे चलते हैं ठीक है? ट्रांजेक्शनल स्टेट, ठीक है? मैं इसको डायग्राम समझाता हूँ, ज़्यादा मजा आएगा। यही तो डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, डायग्राम भी लिखते हैं। देखो सबसे पहले मेरे भाई क्या है यहाँ पे, इसको हटा दो, एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट, ठीक है? एक्टिव स्टेट क्या होती है? दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इन अ डेटाबेस। दिस स्टेट मीन्स दैट द ट्रांजेक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड कैन परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशंस। देखो
इनिशियल स्टेट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन मतलब बिल्कुल मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। दिस स्टेट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड कैन परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन। मतलब मैंने क्वेरी कंपाइल करने के लिए दे दी है, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुका है और नाउ इट्स लाइक अब मैं रीड एंड राइट ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए रेडी। मतलब रीड एंड राइट मीन समझ लो कि यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजेक्शन हो चुका है और ये रीड एंड राइट में ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, एक्टिव स्टेट स्टार्ट हो जाएगी, रीड एंड राइट मेरे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे जी, ठीक है। तो इस बीच में मेरे रीड एंड राइट ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्शियली कमिटेड। Okay, so next is partially committed. A transaction enters this state after performing its final operation and query. मतलब जैसे ही हमारे पास जो 4 क्वेरीज हैं, इफ आई कैन से, ये सारी क्वेरीज अगर मैं परफॉर्म कर लेता हूँ, इसके बाद कमिट पे नहीं जाएगा, वो पार्शियली कमिट पे जाएगा। पार्शियल कमिट मीन्स कि भाई अब आपके सारे ऑपरेशन खत्म हो चुके हैं, लेट्स स्टार्ट कमिट। मतलब अब कमिट की सारी हम क्वेरी स्टार्ट करने वाले हैं, कि सारी सारी क्वेरी एक बार में कमिट कर देंगे। A transaction is in this state. Let's end committed. A transaction in this state, if it has performed all the operations successfully, the effect of the transaction are now permanent in the database. मतलब पार्शियल कमिट आपका चेक करता है कि भाई सारे ऑपरेशन सक्सेस हो गए नहीं हो गए, फिर कमिट क्या करता है, उसको परमानेंटली डेटाबेस में अपडेट कर देता है, डिलीट स्टोर जो भी कर देता है, लेकिन इफेक्ट डाल देता है परमानेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज फेल। देखो ये तो क्या हुआ कि इफ आई टेल यू कि हमारे पास कितनी चीज़ें थी, एक्टिव पार्शियली कमिट, ठीक है। तो लेट्स गो बैक और यहाँ पे देखते हैं हमारा फ्लो कैसे चल रहा है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर एक्टिव स्टेट में आया, हमने रीड एंड राइट ऑपरेशन करे, देन पार्शियली कमिट हुआ, उसके बाद कमिट हुआ, देखो परमानेंट स्टोर मैंने लिखा है यहाँ पे, परमानेंट स्टोर करेगा, देन कमिटेड एंड देन टर्मिनेट द स्टेट। मतलब अब हमारा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। कमिट की बात कह लो या रोल बैक के लो, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई होगा, एंड में खत्म बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, सॉरी देयर इज अ वन थिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट ड्यूरेबिलिटी, कि भाई टर्मिनेट कर दो और सब से चेक कर लो सब सही है कि नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अगर एक्टिव स्टेट से वो फेल्ड हो गया, मान के चलो मेरे पास 10,000 रुपये नहीं थे, है ना, और मैंने सामने वाले को 20,000 दीजिए, तो वहीं की वही वो फेल हो जाएगा। तो रीड एंड राइट ऑपरेशन स्टार्ट करेगा तो वो चला जाएगा फेल स्टेट के अंदर, और चाहो तो फिर यहाँ पे आप मैसेज थ्रो कर दो, कुछ भी हम करेंगे अभी। नेक्स्ट वो क्या जाएगा, फेल्ड स्टेट के बाद अबॉर्ट स्टेट और उसके बाद टर्मिनेट, खत्म, टाटा बाय बाय गया, कि मतलब फेल्ड हुआ, फेल के बाद अबॉर्ट और ट्रांजेक्शन खत्म, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी पार्शियली कमिट में भी कोई फेलियर होता है तो भी वो फेल्ड स्टेट के अंदर आ जाएगा। जैसे फेलियर की हम बात करें तो अगर पार्शियली कमिट में कोई इशू हुआ है, मे बी कुछ अकाउंट का इशू हो गया या फिर बैलेंस डिडक्ट हो गया बट क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक के सर्वर डाउन थे, तो वो पार्शियल कमिट से सीधा फेल्ड स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फाइनल स्टेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन. It means that a transaction terminated. If we are talking about, it is the final state of each transaction. It means that the transaction is finished, either success or not. लेकिन ट्रांजेक्शन फिनिश करना है, ड्यूरेबिलिटी हमें मेंटेन करनी है डेटाबेस की, ठीक है। तो भाई बहुत हो गया, आप देखो यहाँ पे आ जाओ, स्टार्ट ट्रांजेक्शन अपडेट टेबल, दिस इज बेसिक सिंटैक्स, और अब हम इसको देखते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल में, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ transaction, I want to know how many of you completed the course in Triday website. I think you have already know this. Like you need to go triday.com and then you can do sign up and then you can start your SQL course with certification. Why I am forcing you, like why I am saying that you can get you can sign up on this website and then you can start course, because you can get certificate after completing this course. As well as we complete this course as soon as possible, then you guys can complete this course and also complete assignments and then you can generate the certificate, okay. So this is required, so please comment me down like how many of you completed this course till indexes and store procedure, and how many of you complete the assignment, okay. Let's back to the transaction, start this. Okay guys, let's start practical applications with transaction, okay. So first of all, what is the issue विदाउट ट्रांजेक्शन, मतलब हमने जितना समझा उस हिसाब से वी नो व्हाट्स द इशू, बट एसक्यूएल के अंदर रियल टाइम में इशू क्या हो सकता है तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। सो आई एम यूजिंग दिस सैम्पल डेटाबेस एंड आई हैव क्रिएटेड वन बैंक अकाउंट टेबल, ठीक है। तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आई हैव क्रिएटेड वन सेपरेट वीडियो हाउ यू कैन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अ डेटाबेस इन योर वर्कबेंच और DBWare, okay. So let's see what's the issue we had. So without transaction auto commit, okay. So I want to tell you one more thing guys. बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, DBWare या MySQL वर्कबेंच या हम कोई भी सर्वर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो कमिट होता है ना, जो
विच आई एक्सप्लेन यू, वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, 1 मतलब स्टेटस इनेबल होता है उसका, ठीक है? तो अगर कमिट ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक कमिट हो रहा है, तो इफ़ आई अपडेट दिस अकाउंट, ठीक है, बाय -1000 या कुछ भी मैं अपडेट करता हूँ या कुछ भी इंसर्ट करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक इंसर्ट या अपडेट हो जाता है, ठीक है? अभी हम टाइप्स ऑफ कमिट के बारे में देखेंगे, बट फर्स्ट सी द एग्जांपल हाउ ट्रांज़ैक्शन वर्क्स, ठीक है? तो सपोज़ दैट कि भाई मैंने क्या करा है यहाँ पे, एक सेंडर अकाउंट है, ठीक है? ये एक बंदा है 1001, ठीक है? वो 1001 है अमित शर्मा, वो प्रिया वर्मा को पैसे भेज रहा है, ठीक है? सेविंग अकाउंट है उसका, 12,500 उसके पास है, तो 1000 उसको भेज रहा है, ठीक है? और प्रिया वर्मा की आईडी क्या है भाई, इट्स SB1002, ठीक है? तो अगर मैं ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, जैसे मैंने क्या करा, दोनों को ही मैं एक बार में रन करता हूँ, ठीक है? क्योंकि भाई मैं एक ही ऑपरेशन एक बार में कर रहा हूँ ना, अलग-अलग नहीं कर रहा। तो देखो एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट यू कैन डू, तो आप देख सकते हो क्वेरीज रन टू अपडेट इज रो टू, ठीक है? तो अब मैं चेक करूँगा तो आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे भी इसके पैसे 11,500 थे, अब 11,000 इसके पास हो गए, इसके बाद 11,500 रह गए, 1,000 कम हो गए, ठीक है? तो व्हाट इफ मैंने क्या करा कि भाई मैं दोनों ही क्वेरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से गलत आईडी पास हो गई, ठीक है? एक काम कर दो, गलत आईडी का मत लो, हाँ सॉरी गलत आईडी का ही ले लो, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन फेल्ड हो सकता है, मैंने मान चलो और वेयर कंडीशन ऐड की है या सर्वर क्रैश हो गया या समथिंग लाइक। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है? और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो वो क्वेरीज टू अपडेट इज रो 1, पहले 2 अपडेट हुई थी। तो देखो क्या हुआ कि भाई अगर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अकाउंट करता हूँ, तो देखो मेरा यहाँ से तो बैलेंस कम हो गया, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। यू कैन सी दैट कि भाई मेरे पास यहाँ से अकाउंट में से पैसे कट गए, लेकिन इधर नहीं, इधर प्लस नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे कोई इशू आ गया, आईडी सही नहीं थी या जो भी नहीं था एक्स वाई जेड। तो इस सिस्टम फेलियर को, या फिर मान के चलो कोई भी अगर इस यहाँ पे क्रैश होता है, मिस्टेक होती है, उसको हैंडल करने के लिए वी हैव ट्रांजेक्शन, ठीक है? अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हमें करना है ऑटो कमिट ऑन, ठीक है? वैसे मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला था सारी चीज़ें, स्टार्ट ट्रांजेक्शन अपडेट वगैरह वो सब कुछ, ठीक है? तो ऑटो कमिट मैंने ऑफ कर दिया पहले तो, ठीक है? कमिट ऑफ हो गया। अब भाई ऑटो कमिट से ऑफ होने से होगा क्या, यहीं पे दिखा दे रहा हूँ मैं एग्जांपल, कि जैसे सपोज दैट ही अभी इनका बैलेंस चेक कर लो कितना है, 10,500 11,000, ठीक है? एज अमित शर्मा का 10,500 बैलेंस है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, अमित साहब का कितना है 10,500 बैलेंस, ठीक है? और प्रिया जी का कितना है 11,000, ठीक है? सो अब सपोज दैट कि मैंने क्या करा कि सेम है, मेरे पास फेलियर सिनेरियो ही है, ठीक है? मैंने इसको बंद कर दिया, है ना? अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है? दोनों कमांड्स को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने इसको पहले तो ये ऑटो कमिट बंद कर दो, ठीक है? तो आप देखो क्वेरी सेट ऑटो कमिट 0। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है? और मैंने इसको एक्सिक्यूट किया, तो अभी देखो क्वेरीज 2 रन हुई है, लेकिन अपडेटेड रो 1 हुई है। अभी के लिए इसमें देखो डेटा कितना माइनस हो गया, 9,500 हो गया, लेकिन अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ रीस्टार्ट, ठीक है? अब जैसे ही मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ, मतलब अपना कनेक्शन फिर से बनाता हूँ, जैसे मैंने अपना सेशन क्लोज कर दिया, ठीक है? तो अब मैं इस सबसे पहले मुझे डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना, ठीक है? एंड देन मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो मेरे भाई अभी भी इसका बैलेंस जो डिडक्ट हो चुका था वो वापस आ गया 10,500, और इसका 11,000 एज इट इज। तो और अगर हम इसको भी 2 कर देते ना यहाँ पे, तो ये अगर ये चल भी जाता तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमें अब ये चेंजेस कमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ऑटो कमिट बंद कर दिया है। एग्जाम्पल देख लो एंड टू एंड, ठीक है? सेम क्वेरी है, ठीक है? मैं दोनों ही रन करता हूँ इस बार तो, ठीक है? मैंने इसको रन कर दिया, 2 रोज़ अपडेटेड, ठीक है? अगर आप देखोगे इसमें भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा 9,500 12,000, लेकिन अब मुझे इन चीज़ें को कमिट करना पड़ेगा। अगर मैं कमिट नहीं करूँगा तो ये फिर से 10,500 11,000 हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं इसको कमिट करता हूँ, तो आप देख सकते हो अपडेटेड रो 0 कमिटेड। अब मैं अगर अपनी एप्लीकेशन रीस्टार्ट करता हूँ फिर से, ओके? तो अब अगर मैं इसको बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे एक सेकेंड, मेरे पास ये अमाउंट डिडक्ट हो गया। सो दिस इज द यूज ऑफ कमिट, ठीक है? कि भाई कमिट से क्या होता है ना? अब मान के चलो भाई मुझे ये चेंजेस नहीं चाहिए थे, मैंने अपडेट तो कर दिया, सेशन में मेरे अपडेटेड है, ठीक है? टेम्परेरी अपडेटेड है, पार्शियली कमिट यू कैन से, लेकिन मैं कमिट की जगह यहाँ पे रोल बैक यूज कर सकता हूँ, ठीक है? अब रोल बैक से क्या होगा, जो भी मैंने अपडेट किया ना, चाहे मैं सेशन क्लियर कर दूँ, ठीक है? सेशन क्लियर पर तो वैसे भी रोल बैक हो रहा है वो, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो फोर्सफुली भी रोल बैक कर सकता हूँ, ठीक है? सो एक बार यार अब देखो ये कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन पता चल गया आपको सेट ऑट कमिट से क्या होता है, ठीक है? इसको वापस बंद कर लेना अगर आपको अलग एसक्यूएल प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है? तो मैं इसे 0 ही रहने देता हूँ अभी। अब इस चीज़ को देखते हैं एक बार ट्रांजेक्शन के साथ, देन आई विल मूव टू
ऑटो कमिट, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कमिट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टार्ट ट्रांजेक्शन किया, ठीक है। ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के बाद क्या होगा मेरे भाई कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जैसे ही -1000 कर रहा हूँ, +1000 कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली क्वेरी ले लेते हैं अपन, सेंडर रिसीवर, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी एग्जांपल विद स्टार्ट ट्रांजेक्शन एंड कमिट। ओके, सो अभी हमारे पास क्या अमाउंट है, 12,500, प्रिया के पास है 13,000, ठीक है। सो अगर मैं अपनी ट्रांजेक्शन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये सिंपल ट्रांजेक्शन है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से आप एसक्यूएल स्क्रिप्ट कंप्लीट रन करोगे तो आप देख सकते हो क्वेरी 4 फायर हुई, अपडेटेड रिजोर्स 2, तो मेरा डेटा यहाँ पे अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, राइट। इधर 14,000, इधर 11,500। वॉट इफ इसको अपडेट करने से पहले या इसको अपडेट करने के टाइम पे भी कोई एरर आ जाए, तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये भी ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाए या फिर ये ट्रांजेक्शन हो ही नहीं, चाहे मैं कमिट भी कर दूं तो भी कमिट तक वो पहुंचे ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एक एरर थ्रो, ठीक है। तो देखो एरर थ्रो वी कैन डू दैट, बट मैं अभी आपको बेसिक एरर थ्रो करके दिखाता हूँ। वो कैसे करेंगे हम लोग कि इसी अकाउंट में, या फिर एक काम कर लो कि एक कोई दूसरी टेबल ले लेते हैं अपन, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट हो और वो फेल हो जाए, ठीक है। एक तरीका बता रहा हूँ मैं ट्रांजेक्शन फेल करने का या फिर अपने टेबल में डेटा ना ऐड करने का, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कूपन्स कूपन्स को ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ यू गाइस कैन सी कि भाई डुप्लीकेट एंट्री वेलकम 10 की कूपन कोड आ रहा है, ठीक है। मतलब क्वेरी हमारी सही है बट डुप्लीकेट का एरर आ रहा है। तो मैंने क्या करा, ये यहाँ पे दे दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई कि जैसे ही मैं अपडेट अकाउंट करूँगा यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि भाई अगर ये फेलियर होता है तो क्या ये रोल बैक होता है कि नहीं। मतलब कमिट तो मैं कर रहा हूँ, मैं पूरा ट्रांजेक्शन रन कर रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर बैलेंस कट गया लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्वेरी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। मैंने स्टार्ट सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया, तो देखो एरर आ गया, डुप्लीकेट एंट्री फॉर दिस की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, रीट्राई, अब भी नहीं होगा, मैं इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो क्वेरी एग्जीक्यूटेड टू अपडेटेड रोज 1। तो एक बार मैं यहाँ पे इसको बैंक अकाउंट्स, सॉरी, हाँ, तो देखो 10,500 है इसका अमाउंट। अब भी एक बार और करके देखते हैं। मैंने इसको रन किया, कमिट किया, और मैंने इसको क्या करा कि भाई मैंने इसको कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई एरर आ गया, राइट। अब मैं इसका बैलेंस चेक करूँगा, 9,500, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेशन करता हूँ क्लियर, ठीक है। तो क्लियर सेशन करके क्या होगा, एक बार, ओके, तो नाउ यू कैन से कि 10,500 हो गए, मतलब हमारा डेटा कमिट नहीं हुआ, जबकि हमने कमिट किया था, बट बिकॉज ऑफ फेलियर हमारा यहाँ पे अमाउंट अपडेट नहीं हुआ। सो दिस इज ट्रांजेक्शन, वो ऑटोमेटिक रोल बैक हो जाएगा और उसको कमिट नहीं करेगा इफ वी फेस एनी इशू। तो मतलब अगर आपका बैलेंस कटा भी है, मतलब आपका बैलेंस अगर डिडक्ट भी हुआ है, तो वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज ट्रांजेक्शन। ओके, सो लेट्स सी अबाउट ऑटो कमिट, इम्प्लिसिट एंड मैनुअल कमिट, ठीक है। तो देखो ऑटो कमिट आई टोल्ड यू कि भाई यहाँ पे मैं ऑटो कमिट क्या होते हैं, अगर मैं ऑटो कमिट स्टार्ट कर दूँ तो अगर मैं कोई भी क्वेरी रन करूँगा तो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। हाउ यू कैन डिसेबल इट, डिसेबल विद ऑटो कमिट 0। इम्प्लिसिट कमेंट क्या होता है कि अगर हम कोई भी डीडीएल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, तो ये ऑटोमेटिक कमिट हो जाते हैं। इसमें आप अगर इसको ऑफ भी कर दोगे ना, तो भी अगर कोई भी आप टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, उसको ऑल्टर कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, इन 3-4 कमांड्स से, तो वो ऑटोमेटिक कमिट हो जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दी स्टेटमेंट विल कॉज एन इम्प्लिसिट कमिट बिफोर एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन, ब्रेकिंग द करंट ट्रांजेक्शन, वो करंट ट्रांजेक्शन को ब्रेक कर देगा। क्योंकि देखो ये काम ज़्यादातर होते नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई इशू भी नहीं है कि आप कोई मूवी टिकट बुक कर रहे हो और आप टेबल को भी ऑल्टर कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है ये तो, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एग्जांपल है कि इंसर्ट इनटू स्टॉक में कर रहा हूँ, अपडेट प्रोडक्ट सेट कर रहा हूँ, और ऑल्टर टेबल कर रहा हूँ, ऐड कॉलम डिस्काउंट इंट, ठीक है। तो अगर मैं ये करता हूँ ना, तो फिर मुझे कमिट की जरूरत भी नहीं है, मैं सीधा, मुझे कमिट की नीड ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक कमिट हो जाएगा, ठीक है। करके दिखा सकता हूँ, लेकिन कर लेना, मैं इसको डाल दूंगा एसक्यूएल स्क्रिप्ट में, खुद से एक्सपीरियंस करके देखना न्यू चीज़, ठीक है। मैनुअल कमिट, ये जो हम कर रहे हैं या जो हम करेंगे ट्रांजेक्शन के साथ, तो दिस इज मैनुअल कमिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कमिट मोड, ठीक है, क्योंकि हम एक्सप्लिसिटली इसके अंदर कमिट डालते हैं या फिर हमारा कमिट या रोल बैक करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन, यू अंडरस्टैंड,
कमिट यू अंडरस्टैंड। तो रोल बैक, और रोल बैक मैं दिखा देता हूँ करके हैंड टू हैंड इसी वाले एग्जाम्पल में, बाकी फिर हम बड़े एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखो मेरे भाई, ये मैं अभी एरर हटा देता हूँ, ठीक है। बट मुझे क्या करना है कि जैसे ही अमाउंट अपडेट हो जाए, बाद में मैंने ये देखा कि भाई ये गलत था, ठीक है, मैं इफ कंडीशन लगा के दिखाऊंगा, बट अभी मैंने समझ लिया कि भाई ये गलत है, सिंपल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ उसको रोल बैक कर दो, मेरा मन, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बैलेंस माइनस 1000 किया और अपडेट किया है, ठीक है। मैं इसको ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करूंगा, अभी देख लो अमाउंट कितना है। मैं इसको रन करता हूँ, 10,500, 14,000। मैं इसको रोल बैक भी कर दूंगा हैंड टू हैंड। मैंने एसक्यूएल स्क्रिप्ट रन करी, 4 क्वेरीज अपडेटेड रो 4, देखो सेम अमाउंट है, जबकि यहाँ से मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रोल बैक से ही होता है भाई, जो भी ये काम उसको फ्री कर दो, फ्लैश कर दो वापस, ठीक है। टेम्परेरी में मत डालो उसको, टेम्परेरी से भी हटा दो, पार्शियल कमिट से हटा दो, ठीक है। सो दिस इज लाइक रोल बैक, है ना। अब एक बार सेव पॉइंट भी देखेंगे हम, ये रियल लाइफ मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, रियल लाइफ ट्रांसफर सक्सेस एंड फेल्ड केस, ठीक है। तो इसको करने से अच्छा ना हम करते हैं अपना प्रोसीजर वाला काम। देखो रीजन बीइंग कि आप इफ और एल्स यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट क्वेरी में। अगर मैं डायरेक्ट की क्वेरी रन करता हूँ ना, तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एडेड वन स्टोर प्रोसीजर। अब स्टोर प्रोसीजर का नाम है ट्रांसफर अमाउंट। बुकिंग टिकट भी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ मैंने नेक्स्ट में, ठीक है। बट दिस इज ट्रांसफर अमाउंट। तो एक प्रोसीजर क्रिएट करना है अपने को, जिसके अंदर हमें टास्क मिला हुआ है। क्या टास्क मिला हुआ भाई, कि अमाउंट डिडक्ट होगा एक अकाउंट से और चेक होगा यहाँ पे कि भाई अकाउंट में इतने पैसे है भी कि नहीं। और आई विल शो यू कि हम कैसे एसक्यूएल में एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। देखो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड कि देखो मैंने इसको ही डायरेक्ट रन किया, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक एक्सेप्शन आ रही है, इनसफिशिएंट बैलेंस फॉर ट्रांसफर। ये माइस्कूल की एक्सेप्शन तो नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई हुई एक्सेप्शन है, राइट। तो इस तरीके से आप माइस्कूल में एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हो, ठीक है। इनसफिशिएंट बैलेंस फॉर ट्रांसफर का, हाँ ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो आ गया, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन थ्रो द एक्सेप्शन इन माइस्कूल एंड माइस्कूल, ठीक है। सो लेट्स सी द प्रोसीजर फर्स्ट। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर प्रोसीजर की वीडियो नहीं देखी गाइस, तो देखो आई बटन में लिंक है, वरना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। प्रोसीजर जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना ये नहीं समझ पाओगे। तो ट्रांसफर अमाउंट नाम से मैंने प्रोसीजर बनाया, जिसमें मैंने इन फ्रॉम आईडी, ठीक है, वो इंटीजर में मिलेगी मुझे, या अकाउंट नंबर भी आप कर सकते हो, तो मैं इसे वेर कैर कर देता हूँ, ठीक है। और वेर कैर यहाँ पे मैं साइज दे देता हूँ 25, ठीक है। सेम यहाँ पे मैंने इन टू आईडी, या मैंने अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। ये फ्रॉम आईडी नहीं है, फ्रॉम अकाउंट नंबर कर लो इसे, अकाउंट फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। एंड यहाँ कर दो टू अकाउंट, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, ठीक है। अब अकाउंट नंबर जितने डिजिट का है आप देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो 20 जितने डिजिट दिया कैरेक्टर का है, और ये अमाउंट ट्रांसफर होगा डेसिमल में, जो मैंने यहाँ पे अमाउंट दे दिया इन, तीनों इनपुट पैरामीटर है, ठीक है। अब हम इसको बिगिन करते हैं अपनी स्टोर प्रोसीजर को। डिक्लेयर सेंडर बैलेंस, ठीक है, कि भाई सेंडर बैलेंस कितना है सेंडर का, वो जो बंदा भेज रहा है उस पर इतने पैसे है भी कि नहीं, तो इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया है। लेट्स सी स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा हमें। गेट सेंडर्स बैलेंस, सबसे पहले हमें एक बैलेंस के अंदर इनटू, हमने बैलेंस को लेना पड़ेगा सेंडर बैलेंस में, फ्रॉम बैंक अकाउंट्स वेयर अकाउंट नॉट आईडी, कॉलम क्या था भाई हम पे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बैंक अकाउंट्स, अकाउंट नंबर था, ठीक है। तो वेयर अकाउंट नंबर, जो भी हम फ्रॉम आईडी से पास कर रहे हैं, तो अब क्या होगा भाई, जैसे मान के चलो मैंने अकाउंट नंबर दे दिया अमित शर्मा का, तो वो क्या करेगा, अमित शर्मा का बैलेंस इसमें ले आएगा। अब हम चेक करेंगे, इफ नॉट इनफ बैलेंस थ्रो एन कस्टम एरर, ठीक है। ये हम डायरेक्ट नहीं कर सकते बिना स्टोर प्रोसीजर के, दैट्स व्हाई आई पुट दिस इन स्टोर प्रोसीजर। तो अब सेंडर बैलेंस इज लेस देन अमाउंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमें एक्सेप्शन थ्रो करनी है। अगर ग्रेटर देन है तो ठीक है, लेकिन अगर लेस देन है तो हमें एक्सेप्शन थ्रो करनी है। अब लेस देन और इक्वल टू दोनों कर सकते हो, जिससे बिल्कुल जीरो हो जाए अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, लेस देन करना है खाली, ठीक है। तो लेस देन अगर होगा तो भाई एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, बराबर होगा तो चला जाएगा, ठीक है। डिडक्ट फ्रॉम सेंडर, अगर हमें देखो, या तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे तो यही ट्रांजेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, खत्म, कमिट होगा ही नहीं वो, और रोल बैक हो जाएगा, और चेंजेस फ्लश हो जाएंगे, ठीक है। एंड वैसे भी अगर आपने अभी तक सेलेक्ट ही किया है तो इट जस्ट ओके, आप यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। अभी मैं काम करूँगा, इस अपडेट कमांड को ना पहले ऊपर कर दूंगा, फिर उसके बाद दिखाऊंगा कैसे काम करता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। अब डिडक्ट फ्रॉम सेंडर, भाई अगर बैलेंस है तो डिडक्ट कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद क्रेडिट टू रिसीवर बैक, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट आईडी की जगह अकाउंट नंबर चेंज कर दो, ठीक है।
इस तरीके से प्रोसीजर काम करता है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, भाई मैंने इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसफ़र अमाउंट या ट्रांसफ़र अमाउंट, ठीक है, ऑन टू अकाउंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, इसको सेलेक्ट करूँगा, ऑफ कोर्स प्रोसीजर को पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से मैं एसक्यूएल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो क्या बोला, यू हैव एन एरर, ओके, डेलीमीटर ऐड कर देते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास डेलीमीटर यहाँ पे मिस हो गया गलती से, ठीक है, हमने डेलीमीटर चेंज कर दिया। गाइस वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी क्वेरीज कितनी एग्जीक्यूट हुई, 3। तो हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो गया। तो एक बार डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं अपन कि भाई स्टोर प्रोसीजर की लिस्ट में ट्रांसफर अमाउंट टू अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया है। तो उसको कॉल कैसे करना है, सिंपल कॉल ट्रांसफर कॉल अमाउंट। अब यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर देना है। तो अकाउंट नंबर क्या क्या है हमारे पास, या अमित शर्मा बहुत हो गया, अब राहुल को ले लेते हैं। राहुल जी, आप पैसे भेज रहे हो स्नेहा पाटिल को, ठीक है, और कितने भेज रहे हो, 50,000। क्या आपके पास 50,000 हैं? आपके पास तो नहीं है, स्नेहा जी के पास ज़रूर 50,000 हैं। तो एक बार इसको रन करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, देखो, अननोन कॉलम फ्रॉम आईडी, ओह सॉरी, माय बैड गाइस। अब देखो, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू गाइस रिमेंबर, याद है नहीं याद है, याद होना चाहिए यार। चलो कोई बात नहीं, हम पहले करेंगे ड्रॉप प्रोसीजर और फिर प्रोसीजर का नाम, ठीक है। अभी वो ड्रॉप हो गया, अब मैं इसको बोल के दोबारा क्रिएट कर दूंगा। यही एडिट करने का तरीका होता है इसको, ठीक है। वैसे आप एडिट नहीं कर सकते हो अलग से, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया, अब मैं इसको दोबारा रन करूँ। इनसफिशिएंट बैलेंस फॉर ट्रांसफ़र, हमारा जो एक्सेप्शन था हमें मिल गया, ठीक है। एक बार इसको मैं दोबारा देखता हूँ, क्या है भाई, 50,000 नहीं बेच पा रहा, एक काम करो कम कर देते हैं अमाउंट, मैं 5,000 कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा भाई, अपडेटेड रो 0 और कॉल हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं अपना स्टेटमेंट। तो अब देख सकते हो भाई, यहाँ पे राहुल मेहता के पास से पैसे कम हुए और फिक्स नहीं हुए। एक सेकेंड, लेट मी चेक, मैंने अकाउंट नंबर तो सही दिया ना, SBI, ओ माई गॉड भाई, देखो इसमें 42 मैंने ऐड कर दिया, राइट, 4 होना चाहिए। अच्छा लेट्स सी वन थिंग, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो कितना है, 70,000 और 50,000। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेंड किया, आईडी मैंने गलत दे दी थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से अमाउंट तो कट रहा है एंड यहाँ पे 50,000 हो गए। लेकिन क्या ये अमाउंट सच में कट रहा है, क्या ये अमाउंट सच में कट रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। सो एक बार मैं सही आईडी पास कर देता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको चला के देखते हैं एंड लेट्स सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बैंक अकाउंट्स, ठीक है साहब। तो आप देख सकते हो भाई, यहाँ से 5,000 कटे तो कितने रह गए, 7,000, और यहाँ पे कितने हो गए, 55,000, ठीक है। सो दिस इज हाउ स्टोर प्रोसीजर एंड ट्रांजेक्शन वर्क टुगेदर। एंड देखो गाइस, अगर हम कोई एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो कर देते हैं, अब देखो मैंने क्या करा, सपोज कि अकाउंट बैलेंस चेक करने से पहले मैंने एवरी एक्सेप्शन थ्रो कर दी, ठीक है। स्टेप 4 को मैं ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है, कि डिडक्ट कर लो पहले सेंडर से। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि क्या 1 लेस देन है 10 से, ठीक है। सिंपल एक काम कर रहा है, 1 लेस देन है 10 से। तो अगर ऐसा हो गया तो हम एक काम कर देते हैं, सर्वर क्रैश, ठीक है। मैंने सर्वर क्रैश कर दिया तो मैं स्टोर प्रोसेस बुक में दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ड्रॉप कर देता हूँ और प्रोसीजर का नाम बड़ा क्या है, ट्रांसफर अमाउंट टू अकाउंट, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जैसे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया तो मैं एक बार इसको क्रिएट कर देता हूँ दोबारा से, क्रिएट इट, सॉरी देयर इज सम इशू, पूरा सिलेक्ट करो दोबारा से, ओके क्रिएटेड, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैंने क्या करा कि अमाउंट ट्रांसफ़र में मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने एक रो तो यहाँ पे अपडेट कर दिया पहले से ही, ठीक है, एक रो अपडेट हो चुकी है। बट क्या ये वाली रो अपडेट होगी आफ्टर एरर आने के बाद, और अगर ये रो अपडेट हो रही है, ठीक है, सपोज दैट कि अगर ये रो अपडेट, सॉरी ये रो तो अपडेट नहीं होगी बिकॉज एरर आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन क्या ये रो अपडेट होती है, क्या हमारा अमाउंट चला जाएगा इसके अंदर, क्योंकि भाई एरर आने से पहले जा चुका है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, मैंने क्या करा,
क्रिएट प्रोसीजर में फिर से करता हूँ, सॉरी प्रोसीजर में क्रिएट कर चुका हूँ। तो लेट्स कॉल दिस ट्रांजेक्शन, तो मैंने इसको ओपन किया तो देखो सर्वर क्रैश हो गया। सर्वर क्रैश हो गया तो क्या हमारा बैलेंस कम होगा? 2000 रह गया इसका बैलेंस भाई का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रुक जा दोबारा इसको करके देखते हैं। 2000 रह गया बैलेंस भाई का, राहुल मेहता का। तो मतलब आपको लग रहा है ये अमाउंट डिडक्ट हो गया, लेकिन अब हम इसको ना एंड करते हैं, एक बार सेशन को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो भाई, हमने तो देखा था 2000 बट नाउ इट्स शोइंग 5000। तो कहने का मतलब ये है कि वो रोल बैक हो गया, आपका ट्रांजेक्शन सबमिट नहीं हुआ, कमिट नहीं हुआ, राइट, इन स्टोर प्रोसीजर। ईदर यू कैन डू इफ सर्वर क्रैश, या सर्वर क्रैश कुछ हो जाता है। तो देखो वैसे तो बाय डिफॉल्ट अगर ये कमिट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टेट्स दिखाई थी, ठीक है। चलिए वो कैनवा पे देख लेते हैं, अभी पैड पे तो नहीं जा सकता, आईपैड पे। तो देखो अगर फील्ड होता है ना तो भी ट्रांजेक्शन टर्मिनेट होगा, ठीक है। अ ट्रांजेक्शन एंटर्स दिस स्टेट इफ एनी ट्रांजेक्शन फेल और इफ द ट्रांजेक्शन इज अबॉर्टेड बिफोर कंप्लीटिंग, अ फेल्ड ट्रांजेक्शन कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो कमिट नहीं होगा, दैट मीन क्या होगा, वो ऑटोमेटिक आपका जो डिडक्टेड अमाउंट है वो वापस आ जाएगा सेशन क्लियर होते ही। मतलब वो तो मैं सेशन में कर रहा हूँ, लेकिन आपके अकाउंट में वो हैंड टू हैंड रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज डेटाबेस तो जो बैंक वगैरह आए उनके तो डेटाबेस रिफ्रेश होते रहते, राइट। सो दिस इज ट्रांजेक्शन, ठीक है, विद स्टोर प्रोसीजर ऑल्सो। गाइस लेट्स अंडरस्टैंड सेव पॉइंट्स। दो कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, को कमेंट करके बताना कि भाई हाँ मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो आई विल क्लियर दैट। तो यूजिंग सेव पॉइंट, अब सेव पॉइंट क्या होता है, देखो सपोज करो जैसे मैंने बताया था कि जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट अपडेट कर रहा हूँ, स्टॉक अपडेट कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई अपडेट ऑर्डर स्टेटस प्लेस्ड, ठीक है, 5 आईडी का। लेकिन अगर ये कमांड फेल्ड होती है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक कमांड तो चल जाए। मैं नहीं चाहता, देखो ट्रांजेक्शन का रूल ब्रेक हो रहा है कि भाई सारी चल रही है नहीं चल रही है, बट सेव पॉइंट में कुछ कुछ ऐसा हो सकता है। जैसे इसी एग्जांपल में अगर मैं बताऊं तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आप एक एंट्री ऐड कर सकते हो कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद क्या इंसर्ट इनटू ट्रांजैक्शन लॉग, जिसमें आप डालोगे सेंडर अकाउंट नंबर, ठीक है, फ्रॉम अकाउंट भी डाल दो, ठीक है, यहाँ से अमाउंट ऐड कर दो, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज डाल दो इसकी, जो भी वैल्यूज आ रही हैं। तो देखो इससे हो क्या रहा है कि जैसे भाई मुझे पता चलना चाहिए, या फिर लॉग टाइम भी डाल दो इसमें, मुझे पता चलना चाहिए किसी ने अपना ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया। भाई बैंक को भी तो पता होगा ना, फेल्ड भी हुआ है तो, लेकिन बैंक को पता होगा। तो मैं क्या करूंगा कि भाई अब अगर जैसे मान चलो ये एरर आ गया, यहाँ पे मैंने एरर शो कर दिया, एरर आ गया, सिस्टम बंद हो गया, ये सारी कमांड चली जाएंगी, सारी की सारी। तो मेरा ट्रांजेक्शन लॉग भी चला जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता ट्रांजेक्शन लॉग जाए, तो देन आई कैन यूज सेव पॉइंट, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके दिखाता हूं मैं, क्योंकि आप रोल बैक कर सकते हो ऑफ कोर्स, है ना। सो यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट की टेबल है, स्टॉक की प्रोडक्ट की टेबल में दिखा देता हूँ एक बार। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट की टेबल आ गई। इसमें कॉलम हुआ स्टॉक का, कहीं ये रहा स्टॉक का कॉलम, तो मैं कम कर रहा हूँ। एक ऑर्डर सी टेबल है, ऑर्डर सी टेबल देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पे स्टेटस कॉलम है शिफ्ट, और यहाँ पे मैं स्टेटस को प्लेस कर देता हूँ, स्टेटस शेप ही दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे ऑर्डर आईडी है 10,1000, ठीक, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है, क्या होगा देखो, अगर मैं रोल बैक कर रहा हूँ, ठीक है, रोल बैक। अब देखो रोल बैक अगर मैं पूरा कर दूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, और 2 स्टेप 1 वैसे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी काम करता है, अभी तो इसको चलाते हैं डायरेक्ट। तो देखो क्वेरीज टू अपडेट इज रो टू, ठीक है। तो मतलब सिंपल मेरा अपडेट हो गया डेटा, लेकिन मैंने इसको रोल बैक कर दिया तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे मैंने क्या करा कि प्रोडक्ट ये था वायरलेस माउस, इसका स्टॉक अभी 42 ही है, और इस आईडी पे अगर मैं देखूंगा ऑर्डर्स में 10,199 अब भी शिफ्ट है। तो मतलब रोल बैक कर दिया मैंने, इसलिए कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब वापस अगर मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसमें सेव पॉइंट ऐड करता हूँ, सेव पॉइंट मैंने ऐड किया, ठीक है, सेव पॉइंट में डाल दिया S1, सिंपल, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया रोल बैक टू S1, मतलब S1 तक रोल बैक करो, उसके बाद रोल बैक मत करना। तो अब अगर मैं इन तीनों को चलाता हूँ, चारों को चलाता हूँ, कमांड को मैंने एग्जीक्यूट किया, तो देखो क्वेरी रन हुई 5, अपडेट इज रूट 2, ठीक है। तो अब मैं अगर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो वो शिफ्ट ही है, यहाँ पे प्लेस नहीं हुआ इस ऑर्डर आईडी पे पर्टिकुलर 10,108 पे। लेकिन इफ आई एम गोइंग टू प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो भाई कहाँ गया स्टॉक, ये 42 मैंने गलत देख लिया था क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, है
42 प्लस देख लेते क्या बनना है भाई। एक काम करते दोबारा चलाते इसको, ठीक है। आई एम कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो देखो अभी प्रोडक्ट इसमें 1 है ना, 1 में 88 है। मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन यार बार बार कंडीशन लगानी पड़ेगी और कुछ बात नहीं है। वेयर प्रोडक्ट ID इक्वल टू 1, तो देखो 88 आ रहा है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, टोटल, और इसको कमिट भी करना है। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार। अपडेट इज टू क्वेरीज 5, ठीक है। तो देखो स्टॉक 87 हो गया, राइट। बट जो हमारे पास ऑर्डर का स्टेटस है ना, ऑर्डर ID, वो शिफ्ट ही होगा, वो प्लेस नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या करा भाई, इसको रोल बैक टू S1 किया कि S1 तक भाई रोल बैक हो जाओ, बाकी सारी चीजें कर दो। तो अगर मैं अपना सेशन क्लियर भी करता हूँ तो भी बिकॉज ऑफ सेव पॉइंट मेरा प्रोडक्ट में से स्टॉक कम हो चुका है। ये थोड़ा सा बैड एग्जांपल है, आई नो, रोल बैक दिखाने के लिए या सेव पॉइंट दिखाने के लिए ये बेस्ट था, लेकिन यार ये एग्जाम्पल बहुत बार हो गया, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक मैं एग्जाम्पल बताता रहा हूँ क्या, कि वही ट्रांजेक्शन लॉग वाला मैंने एक बता दिया आपको, ऑर्डर ID वाला कि मुझे क्या करना है भाई, कि स्टॉक अपडेट नहीं करना। स्टॉक अपडेट तो मैं इसके नीचे रख देता हूँ, क्या है, इंसर्ट इनटू, देखना हम पे ऑर्डर लॉग है कि नहीं, चलो हैंड टू हैंड इसको कैटे साइड ही लेते हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं। ऑर्डर आर्काइव, टेम प्रोडक्ट, स्टॉक लॉग, सेल्स रिपोर्ट, ऑर्डर आइटम्स, धत तरह की नहीं है, ठीक है। एक क्रिएट कर देते हैं टेबल, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ बस मैं खाली, क्रिएट टेबल, ठीक है, ऑर्डर्स लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉलम ऐड करेंगे, ओके। सो लेट्स क्रिएट दिस ऑर्डर लॉग टेबल, हमने क्रिएट कर दिया, और इसमें हम कुछ डेटा भी इंसर्ट नहीं करेंगे। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर लॉग, ऑर्डर लॉग, ठीक है। तो अभी कोई डेटा नहीं है इसके अंदर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, कि इंसर्ट इनटू ऑर्डर लॉग, ठीक है, और इसमें अपने लॉग ID क्या है, 12। इसका मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इस ट्रांजेक्शन को पूरा रन करता हूँ, ठीक है, तो देखो अब मैंने सेव पॉइंट S1 तक रोल बैक किया है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ देख लो एक काम करते हैं, देखो सारी टेबल्स देख लेते हैं, ऑर्डर लॉग में कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में वेयर प्रोडक्ट ID 1, और ऑर्डर में भी देख लेते हैं एंड टू एंड। बड़ी दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है, देखो देखो, 1 मिनट क्या डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये शिफ्ट है, ये 87 है, और ये ब्लैक है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रन करता हूँ रोल बैक तक, ठीक है। 6 क्वेरीज अपडेटेड 3 रोज। तो मैं एक बार का ऑर्डर्स में देखूंगा, देखो ऑर्डर्स में क्या है, 87 ही है, नहीं चेंज हुआ, और ये भी शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने इसको रोल बैक 1 पॉइंट तक किया है तो ये ऐड होना चाहिए। सो यू कैन सी ये ऐड हो गया, ठीक है। कि भाई ऑर्डर स्टेटस ट्राई किया था, प्लेस का ऑर्डर ID ट्राई की थी, और लॉग ID ये है, लेकिन हुआ नहीं। तो इस तरीके से, आप अपना ऑडिट भी कर सकते हो। चलो भाई, सेव पॉइंट समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं अपने पास बचा क्या। देखो ये मैंने स्टेट बताई दिए थे, ट्रांजेक्शन का मैंने स्टेट बताई दिया, बिगिन, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, कमिट, रोल बैक, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कोई भी इशू तो भाई बताना उसमें कमेंट सेक्शन में अगर, ठीक है। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स आल्सो। मल्टी टेबल ट्रांजेक्शन, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन लॉग वाला एग्जांपल है। शॉपिंग कार्ट चेकआउट, ठीक है। देखो मैं एक आपको टास्क दे रहा हूँ कि एक काम करना भाई, मुझे एक क्वेरी लिख के दिखाओ जहाँ पे आप एक क्या करोगे, जहाँ पे एक सिंपल आप टिकट बुक करोगे, ठीक है। बेसिक करोगे, बहुत बेसिक, ये तो मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल बताने वाला हूँ, लेकिन आप एक बहुत बेसिक एग्जांपल करोगे और मुझे वो क्वेरी लिख के दिखाओगे कि अगर टिकट बुक नहीं होती है तो आप उसको रोल बैक और कमिट कैसे करोगे, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट, काइंड ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। शॉपिंग कार्ड एग्जाम्पल, देखो मैंने स्टार्ट ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। चेक इफ ऑल आइटम आर इन स्टॉक। सबसे पहले तो मैं ये देखना है कि सारे आइटम स्टॉक में है कि नहीं। तो मैंने क्या करा भाई, वेयर सी, सिलेक्ट सी प्रोडक्ट ID, स्टॉक, क्वांटिटी फ्रॉम कार्ड आइटम्स, पर्टिकुलर यूजर की कार्ड में से, ठीक है। देन मैं क्या कर रहा हूँ कि इफ ओके देन कंटिन्यू, पहले ऑर्डर में यहाँ पर स्टॉक चेक करना है। देन अब मैंने करा क्रिएट ऑर्डर, कि इंसर्ट इनटू ऑर्डर यूजर ID एंड ऑर्डर डेट, ठीक है। सेट ऑर्डर ID लास्ट इंसर्ट ID, क्योंकि हमें ये ऑर्डर ID ऑर्डर आइटम में भी ऐड करनी है, ठीक है। ये मैंने स्टोर प्रोसीजर में भी एग्जांपल समझाया था, तो प्लीज मस्ट वॉच दैट। तो इंसर्ट इनटू ऑर्डर आइटम, देन ऑर्डर ID, प्रोडक्ट ID एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि सिलेक्ट ऑर्डर ID, मतलब भैया कौन सा ऑर्डर ID चाहिए मुझे, प्रोडक्ट ID, क्वांटिटी फ्रॉम कार्ट आइटम्स वेयर यूजर ID इज दिस।
ठीक है, ये वेरिएबल बार बार इसमें ऐड होता रहेगा जितने हमारे पास ऑर्डर आइटम होंगे, ठीक है। और फिर मैं अपडेट प्रोडक्ट कार्ट आइटम सी ऑन डी ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे मैं पी स्टॉक उसका माइनस कर दूंगा क्वांटिटी से, ठीक है, कार्ट आइटम्स के बिहाफ में, एंड देन मैं कार्ट आइटम को क्लियर कर दूंगा। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल, इस तरीके से हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है। लेट्स सी स्टार्ट ट्रांजेक्शन विद चेक सीट अवेलेबिलिटी एंड लॉक द टेबल। अब मान के चलो दिस इज लाइफ बुक माई शो एग्जाम्पल, ठीक है। तो बुक माई शो पे आप गए, आपने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सीट करा 10 शो आईडी है आपका 101, ठीक है, कोई मूवी लगी है सपोज मालिक लगी है अभी, या फिर मिशन इम्पॉसिबल लगी है सपोज, एंड सीट नंबर हमने क्या दिया A1 और A2, टू कॉर्नर सीट्स विद रिक्लाइनर, ठीक है, एंड इसका स्टेटस है अवेलेबल, ठीक है। तो मैं सीट सेलेक्ट कर रहा हूँ सबसे पहले, भाई है। अब मैंने इसको फॉर अपडेट किया, फॉर अपडेट दिस इज कमांड फॉर लॉक द टेबल। यहाँ से आप इसको लॉक कर दोगे, जैसे आप देखते हो बुक माई शो में अगर आप टिकट बुक कर रहे हो, तो अगर आप सेम सीन दूसरे मोबाइल पे ओपन करके देखोगे तो फॉर अ टाइम बीइंग जब तक आप अपना ट्रांजेक्शन करते हो, जब तक अपना ऐप में जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तब तक वो सीट को लॉक करके रखता है, ठीक है, दिस इज फॉर लॉक। ऑप्शनल चेक रो काउंट इंश्योर सीट्स आर अवेलेबल, यहाँ पे आप दोबारा चेक कर सकते हो कि सीट्स अवेलेबल है कि नहीं। देन आप क्या करोगे, अपडेट सीट सेट स्टेटस लॉक्ड, ओके, वेयर शो आईडी, यहाँ पे आपने सीट का स्टेटस अपडेट कर दिया अवेलेबल से लॉक, जहाँ पे आप शो आईडी 101 एंड सीट नंबर इन पे आप लॉक लगा रहे हो, ठीक है। देन क्रिएट अ पेंडिंग बुकिंग रिकॉर्ड, जहाँ पे आप पेंडिंग बुकिंग डालोगे 2 सीट्स की, ठीक है, विद हैविंग यूजर आईडी शो आईडी एंड सीट नंबर एंड स्टेटस। क्यों पेंडिंग, तथा पेमेंट सिमुलेट नहीं होता, ठीक है। पेमेंट स्टार्ट हुआ हमारा और पेमेंट फेल्ड हो गया सपोज, ठीक है। अगर पेमेंट स्टेटस फेल्ड होता है देन हम करेंगे सर रोल बैक। रोल बैक से क्या होगा ना, आपको इन रोज को रिमूव नहीं करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इस सीट के स्टेटस को वापस लॉक से अनलॉक नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी को छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अगर फेल्ड होता है, ये मैं दोनों करके दिखा सकता हूँ कि फेल्ड की जगह सक्सेस अगर मैं कर दूँ यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये आपका ये नहीं चलेगा, अगर ये नहीं चलेगा तो अपोज फिर क्या होगा, एल्स में अपडेट सीट, अगर पेमेंट सक्सेस हो गया तो अपडेट सीट सेट स्टेटस बुक्ड वेयर शो आईडी इज दिस एंड सीट नंबर इज दिस, कि भाई इन दो के लिए, नॉट फॉर पर्टिकुलर यूजर, इन दो के लिए ये सीट बुक हो गई। अब ये सीट हमेशा पूरे हॉल में ऑफकोर्स बुक है A1 A2, ठीक है, तो आप उसे दोबारा बुक नहीं कर सकते। सीट्स आपने कंफर्म कर दी, देन आप बुकिंग्स में कंफर्म करके यूजर आईडी एंड शो आईडी एंड ये डेटा अपडेट कर सकते हो। फिर फाइनलाइज द ट्रांजेक्शन कमिट, एंड आप फिर यहाँ पे मैसेज शो कर सकते हो बुकिंग सक्सेसफुल, ठीक। सो दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो। सो गाइस ये ट्रांजेक्शन की कंप्लीट वीडियो थी। अगर इसमें आपका कोई भी पॉइंट बच रहा हो तो प्लीज़ टेल मी, क्योंकि आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक। जहाँ पे हम पे एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रह गया था, क्या क्या हमने बताया था। कमिट के टाइप्स, रोल बैक, सेव पॉइंट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन विद स्टोर प्रोसीजर भी हो गया, TCL कमांड्स भी हो गई, एसिड प्रॉपर्टीज भी हो गई, एंड ट्रांजेक्शन तो हो ही गया, ठीक है। So this is all about transition guys. I know it's very lengthy video but you must understand about that, like कि transition कितना important है, ठीक है। तो I want कि जो भी मैं असाइनमेंट करूँगा वो आप मुझे कमेंट में उसके आंसर दो, चाहे पेस्ट करो अपने लैपटॉप से, कुछ भी करो, आई डोंट नो, बट हाँ आई वॉन्ट कि आप वो ट्रांजेक्शन्स ऐड करो, ठीक है, ठीक है। तो आज का मत पूछो क्या है, व्हाट इफ वी डोंट यूज ट्रांजेक्शन इन टिकट बुकिंग, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है भाई। टू पीपल माइट सिट ऑन द सेम सीट, कॉन्ग्रेचुलेशन नाउ इट्स इंडियन रेलवे चैलेंज मोड, ठीक है, मतलब ऑफकोर्स 2 लोग एक ही सीट पे बैठे होंगे। या फिर योर फ्रेंड बुक 2 सीट साइड बाय साइड, यू एंड योर गर्लफ्रेंड, बट यू गेट A1 एंड दे गेट्स Z99। अगर आप ट्रांजेक्शन यूज नहीं करोगे तो, क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन यूज नहीं होगा तो कोई भी आपको सीट पकड़ा दी जाएगी, ठीक है। द सिस्टम सेज बुकिंग सक्सेसफुल बट योर सीट नंबर इज नल, होप यू लाइक सरप्राइज, ओके। सीट नंबर इज नल मतलब जो आपके पास स्लिप जनरेट होके आई है उसमें सीट नंबर ही नहीं है, नल वैल्यू शो कर रहा है वहाँ पे, लाइक। तो दिस कैन बी हैपन इफ यू डोंट यूज ट्रांजेक्शन इन टिकट बुकिंग, ठीक है। तो भाई हमारे पास लास्ट पे इंटरव्यू क्वेश्चन है, और इंटरव्यू क्वेश्चन से पहले टास्क है आज का क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट हैपेंस इफ वी डोंट यूज ट्रांजेक्शन इन टिकट बुकिंग, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें वैसे मैंने आंसर बता दिए, इसको टिकट बुकिंग की जगह व्हाट वी कैन डू इन ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है अपने आंसर कमेंट में बताना। एंड चैलेंज, क्रिएट अ ट्रांजेक्शंस टेबल एंड सिमुलेट 1 फेल्ड केस यूजिंग रोल बैक। अब देखो आप कोई भी टेबल बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। 3 लाइन का कोड लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
जिसमें आप एक ट्रांजेक्शन को ऐड, इंसर्ट या अपडेट कर रहे हो और बाद में उसे रोल बैक कर रहे हो, रीजन डिफाइन कर रहे हो कि वो रोल बैक क्यों हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी द इंटरव्यू क्वेश्चंस। बेसिक लेवल में आपसे क्या पूछा जाता है, व्हाट इज ट्रांजेक्शन इन माइस्क्ल, व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज, व्हाट आर कमांड्स यूज्ड टू कंट्रोल ट्रांजेक्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कमिट एंड रोल बैक, ये सब बता चुका हूं मैं अभी, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पे व्हाट इज यूज ऑफ सेव पॉइंट, रोल बैक टू एंड रोल बैक टू सेव पॉइंट, जैसे हमने रोल बैक टू S1 किया था, उसका यूज क्या है। हाउ डू यू स्टार्ट ट्रांजेक्शन मैनुअली, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि भाई ऑटो कमिट बंद कर दो, स्टार्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दो। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टार्ट ट्रांजेक्शन, हाउ डू यू चेक रनिंग ट्रांजेक्शन इन माइस्क्ल, ठीक है। Explain isolation level in MySQL and their impact on transaction. Why are dirty reads and non-repeatable reads are phantom? ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. How does MySQL handles concurrency control in transaction? ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, या फिर ये हम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखते हैं भाई. ये तीन और चीज़ें ना, आप एक काम करते हैं, ये 3-4 चीज़ें हम इंटरव्यू क्वेश्चंस में देखते हैं. ओके, so guys, this is for this lesson. See you guys in next lesson where we learn about Windows function. And guys, people are asking me भाई वीडियो स्लो क्यों आती है. यार देखो, अगर इतनी लेंथी वीडियो बनानी होती है ना और इतने ज़्यादा रिसर्च के बाद, तो टाइम लग जाता है. फर्स्ट थिंग. सेकंड, वी विल कंप्लीट दिस कोर्स एनी हाउ, ठीक है. तो अब इसमें लास्ट हमारे पास क्या क्या बचा हुआ, अगर हम देखें अपने सिलेबस में, तो यहाँ पे देखो मेरे भाई ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया. टेम्परेरी टेबल्स बची हैं, नो, ठीक है. सेकेंड, विंडोज फंक्शन, फिर क्वेरी एनालिसिस टेक्निक्स, एंड वन मोर थिंग जो मुझे ऐड करनी थी, विद CTE, मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन. ये अभी हमें करना है भाई, ये भी रह गया है, ठीक है. सो गाइज, अभी तक इस मतलब मान के चलो इस पूरे कोर्स में 4 से 5 वीडियोस और पेंडिंग है अभी, ठीक है. तो स्टे ट्यून विद दिस कोर्स एंड प्लीज़ पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट भी लेके जाना, ठीक है. ओके गाइज, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो.